Good evening, students. Now, today I will start the lecture number 6 of the spring design. And in this lecture, I will first give you the description of the leaf spring, that is the construction of the leaf spring, and then about the nipping, what is nipping and its derivations also. So, this is a very important chapter, you can say, topic of the spring. So here I will give you the complete construction and moreover that what is nipping, how it affects, what are the, you can say, how its derivation can be taken up, and where the load will act, where the load of the bolt will act, and how we have to calculate the load of the bolt when we will just tighten the spring. So these things I will take up. Now first I will start from the construction. So you can say construction of the leaf spring. So सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा कि लीफ स्प्रिंग क्या है, कहां यूज होता है. तो लीफ स्प्रिंग जो है ये यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, राइट, एंड द डिजाइन ऑफ इट्स एंड्स like this, that when it deflects, or you can say it deflects along a definite path, and it will work as a support, it will work as to support the structure also, right? And instead of this, it will also carry the driving torque, driven torque, and the energy absorbed. So its function is like this, right? So क्या है used in automobiles? It consists of number of plates called leaves. तो ये प्लेट्स होती हैं जिनको हम लीव्स कहते हैं, राइट? So they are held together by means of the bolt here. So this is the central bolt here, or this is the central bolt, or you can say this is the shrunk band. It is assembled and tightened by the central bolt, crank bolt, or the shrunk band. So there are two types of leaves here. One is called the major leaf, जिसको हम क्या कहते हैं, full length leaf, right? So the other one are called the graduated leaves. और ये जो मैंने नीला कलर से आपको जहाँ पे डिस्क्राइब किया है, these are the graduated leaves. So this is called the master leaf, and these are called the graduated leaves, right? So these are assembled like this, and before assembling this to a spring, what we will do, a radius of curvature is given to them, right? Radius of curvature is given to the full length leaf. तो radius of curvature जो है ये full length leaf को दिया होगा before assembling it, and then they are held together by means of central bolt, you can say crank bolt, or called the shrunk band. Then it is held together by this. Now these are the U clips, and this is the central bolt or shrunk band. Now this is, you can say this is the rebound clip. This is the rebound clip which is there. So rebound clip का क्या function होगा कि जब स्प्रिंग जो है रिबाउंड करेगा अंडर लोड, व्हेन इट विल रिबाउंड,
तो ये एक डेफिनेट पाथ के ऊपर, इंटरमीडिएट पाथ के ऊपर इनको जहां पे रिबाउंड क्लिप को लगाया है, सो दैट दे विल कनेक्ट इट प्रॉपरली। तो जो स्ट्रेसेस आपकी प्रोड्यूस होंगी मास्टर लीफ में, तो वो सारे लीव्स के ऊपर, ग्रेजुएटेड लीव्स के ऊपर भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होनी चाहिए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द रिबाउंड क्लिप जो जहां पे है। अब जहां पे देखा आपने जो मास्टर लीफ है, इट्स एंड्स आर फॉर्म्ड लाइक ए आईज, ठीक है ना। इसके एंड जो है ये आईज की शेप में बने हुए हैं, राइट। और इन आईज में क्या है, देयर इज ए बुशिंग आल्सो। सो बुशिंग जो जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एंटी फ्रिक्शन मटेरियल, राइट। क्या होगा, एंटी फ्रिक्शन मटेरियल, यू कैन से ब्रॉन्ज बुशिंग इस्तेमाल होती है, रबर बुशिंग का हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो दे आर हियर, राइट। So this is the master leaf and these are this one. Now from here to here you can say this is the span of the spring, right? This is the span of the spring or the spring length. Suppose it is your this 2L or 2L1, right? तो जहां पे जो आपने सेंटर में, अगर जहां पे हमने बैंड श्रंक बैंड लगाया है, तो अगर इसको हमने इफेक्टिव लेंथ निकालनी हो, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी इसमें, इफेक्टिव लेंथ जिसके ऊपर बैंडिंग स्ट्रेस जो एक्ट करेंगी। सो इफेक्टिव लेंथ इन केस ऑफ श्रंक बैंड, effective length क्या होगी, if 2L, you can say if 2L is the length of this from here to here, if 2L is the grass length, then the effective length in case of shrunk band, this is equal to 2L minus width of the band, right? And suppose if I say that the band की जो width है, if it is denoted by L, small l, so this is, you can say this is equal to 2L minus L, right? So effective length जो दूसरा केस है, effective length in case of crank bolt या center bolt, in case of crank bolt, so effective length इसमें क्या होगी, जब distance 2/3 distance between the two U clip, इनके बीच में जो 2/3 distance होगा, that is subtracted from the total length of this, right? तो 2/3 जो लेंथ है वो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन केस ऑफ दिस ये आपका आएगा 2L minus 2/3 into L, if L is the distance between the two U bolts, right? So this is the effective length in case of this. और इफेक्टिव लेंथ हमें इसलिए निकालना है क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, वो आपका इफेक्टिव लेंथ के ऊपर इंड्यूस होगा, राइट? सो दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ. मास्टर लीफ, विच आई टोल्ड यू दैट मास्टर लीफ इज द बिगेस्ट लीफ, राइट? एंड इट इज गिवन द इनिशियल curvature, and then these leaves are held together by means of the bolt, right? उसके बाद what happens now when we will tighten this bolt? What happens? Your this main leaf, you can say, that will bend back. जब इसको हम बोल्ट को टाइटन करेंगे तो ये लीफ क्या होगा, ये पहले पीछे की तरफ बेंड होगा, and then the initial stress will develop in the main leaf. The direction of the initial stress, that is opposite to the normal load. जो डायरेक्शन होगी इनिशियल स्ट्रेस की वो किधर होगी, ऑपोजिट होगी नॉर्मल लोड में. सेम, not same you can say, but in case of graduated leaf what happens,
the direction of the stress, initial stress will also develop there, but the direction of the stress, that is in the same direction of the load, right? So that is in the same direction of the load. And when the load is applied gradually, ये तो पहले था जब हमने क्या किया, इसको बोल्ट को टाइटन किया. जब बोल्ट को टाइटन करेंगे तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड. जब बोल्ट को टाइटन करेंगे, ये जो कर्वेचर हमने दिया है, राइट, तो क्या होगा, जब बोल्ट को टाइटन करेंगे तो ये लीफ, जो मेन लीफ है आपका, ये पीछे की तरफ बैक, जो लोड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट ये बेंड करेगा बैक को, राइट. और जो इनिशियल स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी, उस स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल लोड के अपोजिट होगी. एंड इन केस ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स व्हाट हैपेंस, ग्रेजुएटेड लीव्स के केस में भी इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होगी and the direction of the initial stress, that is in the same direction of the normal load, right? So this is about the when we will tighten the bolt, right? Now next one is, these are the graduated leaves, and you will see from here the ends of the graduated leaves are trimmed, right? The ends of the graduated leaves are trimmed. Why the ends of the graduated leaves are trimmed? Because they should not having any digging effect on each other. एक दूसरे के ऊपर इनका कोई digging effect ना हो, इसलिए इनके ends को हम क्या करते हैं, trimming करते हैं in various forms में, कि there should be no digging effect on this, right? So I think this is the each and every concept I have given to you. So this is your eye. इसका काम होता है, इसके बीच में क्या करेंगे, हम एक बोल्ट को इसके बीच में से पास करेंगे एंड देन इट इज अटैच्ड विद द हाउसिंग ऑफ द एक्सल और द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल. तो इसके साथ इसको क्या करेंगे, हम जो एक्सल की हाउसिंग है ये इसको इसके साथ अटैच करेंगे थ्रू द बोल्ट, राइट. सो दिस इज अबाउट योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीफ स्प्रिंग, राइट, यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल, राइट. नाउ the next one, so one point is also there, since the master leaf, ये जो आपका मास्टर लीव है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस जो है करेंगी. एक आपका जो वर्टिकल बेंडिंग लोड होगा, that will affect, that will produce the stresses there. The sideways of the vehicles, twisting of the vehicles. So this master leaf has to withstand lot of stresses, right? And so for this purpose, what we will do, sometimes we will use 2 number of master leaves to withstand the excessive stresses which will produce during the course of action, right? So this is about your this construction of the leaf spring. Again I will explain it. तो leaf spring क्या है? First, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? This is used in the automobile. It consists of the number of flat plates which are called leaves. They are held together, right? They are held together by means of the central bolt or the band around the shank. Central bolt or the band around the shank, right? So this is held by this one. So initially the radius of curvature is given to the master leaf. So initially the radius of curvature to given to the leaves. Why the radius of curvature to given to the leaves? When the load will act on them, so they are having the tendency to straighten up, right? They are having the tendency to straighten up. So it is given the curvature. The leaves are given the initial curvature. Now, what happens? The leaves are put like this before assembling for the spring. So initial curvature is given to them. Then the bolt is introduced to the center of the leaves, right? And when the bolt will be tightened, क्या करेंगे? जब हम इसको टाइटन करेंगे, बोल्ट को टाइटन करेंगे, what happens? The initial stresses will set up in the full length leaf as well as the graduated leaf. तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ आपकी जो मास्टर लीफ में होगी,
क्या होगा जब इसको लोड को टाइटन करेंगे, मास्टर लीफ दैट विल bend back, right? And the stresses, initial stress that will be set up, and that initial stress is having the direction opposite to the normal load, whereas graduated leaves will also, there will also set up the initial stress, but the direction of the stress is in the same direction, right? Now, this is your rebound clip. It is also having some function because it is put on some intermediate, you can say, length of the spring. और इसका जो main function होगा, when there is a rebound to the spring, so what happens? The stresses that should be equally distributed among all the leaves. You can say ये जो stresses जहाँ पे main mass leaf में produce होगी, तो वो आपके graduated leaf में भी जो equally distribute हो जाएगी, so that your this design will not fail, right? So this is its function. Now this is the, ये जो आपका leaf है, master leaf, तो इसके end it is formed like eye, its shape is like a eyes, और इसमें क्या है कि eyes में क्या है, जहां पे bushing होगी, bushings जो है, this is of the anti friction material, you can say rubber, bronze bushing जहां पे है, right? और इसको ये जो आपके एंड्स हैं, इसको आप क्या करेंगे, हाउसिंग, जो एक्सल की हाउसिंग में उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो इफेक्टिव लेंथ का भी मैंने आपको बताया कि अगर आप यूज करते हैं, श्रंक बैंड को यूज करते हैं, तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ कौन सी लेंथ होगी, जिस लेंथ के ऊपर आपकी बैकबीट स्ट्रेस इंड्यूस होंगी, वो उस इफेक्टिव लेंथ को निकालने का क्या है, 2L इज द स्पैन ऑफ द स्प्रिंग, 2L इज द span of the spring, then the effective length, this is equal to 2L minus width of the band. And in case of crank bolt, if you are using the U bolts or crank bolt here, in that case, so your effective length, this is the 2/3 distance between the two bolts. जो उनके बीच में जो distance होगा उसका 2/3 part ले लीजिए, तो this is equal to 2L minus 2/3 into L, right? So this is about your this. And now these are the graduated leaves. You have seen they are trimmed like this. They are trimmed like this. Why it is trimmed like this? Because they have no digging effect on the corresponding leaves. इनके ऊपर कोई digging effect ना हो, इसलिए इनको एक shape दी जाती है, trimmed किया जाता है, so that they will not dig the other leaf which is in contact with this. So this is about this construction of this. Now I will take the nipping. What is nipping here? So nipping, अभी ये शुरू करेंगे हम nipping. What is nipping? देखिए, try to understand it. As you know, the stress in the full length leaf, this is 50% more than that of the stress in the graduated leaves. This is already we have derived there that sigma f, this is equal to 3/2 sigma g, right? This is already derived we have in the previous lecture. So you can say that stress in full length, stress in full length leaf is 50% more than the stress in graduated leaf. ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब हमारा क्या फंक्शन है? हमारा ये फंक्शन है कि ये जो मटेरियल है इसको समझने की कोशिश करें। ये जो लीफ स्प्रिंग है, इसमें देखा, इसमें आपने नंबर ऑफ लीव्स है, राइट? इसमें नंबर ऑफ लीव्स में, इसमें फुल लेंथ लीव्स है
और उसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएटेड लीव्स हैं, राइट। अगर मैं कहता हूं कि फुल लेंथ लीफ जो है वो 50% मोर स्ट्रेस को कंज्यूम करता है, तो 50% मोर स्ट्रेस उसके ऊपर आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी मटेरियल जो जहां पे है लीव्स का, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट एडवांटेजली, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली, राइट, बिकॉज दिस लीफ will carry the more stress, means 50% more stress than that of the graduated leaves. But our point is, when it is acting or functioning as a compact unit, so हमारा जो एक मेन पॉइंट है वो ये होना चाहिए, ये होता है कि जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, जितनी भी लीव्स हैं इस पर, और जो स्ट्रेस एक्ट करती है वो स्ट्रेस जो है इस पर इक्वल स्ट्रेस एक्ट करनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने ट्राई किया था दैट सिग्मा एफ, पीछे किया था सिग्मा एफ, दिस इज इक्वल टू 3/2 सिग्मा जी, राइट। सो इन ऑर्डर टू गेट दिस पोजीशन, हमें ऐसा करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कि इफ stresses are equal in all the leaves, right? So stresses should be equal, because only then we can utilize the material which is used in the spring, leaf spring, at the most advantageous position, right? तो इसके लिए क्योंकि क्या होना चाहिए, in order to get the same, in order to get the same stress in all the leaves, ठीक है, in order to get the same stress in all the leaves, तो हमें क्या करना चाहिए, what are the conditions? तो फर्स्ट कंडीशन मैं कह सकता हूं, पहली कंडीशन क्या होगी, जो मास्टर लीफ है आपका, राइट, सो master leaf is having the smaller thickness, master leaf is having the smaller thickness, जो इसकी master leaf की जो thickness है, master leaf is having the smaller thickness। अब ये स्मॉलर थिकनेस होने से क्या होगा, जो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज मिनिमाइज्ड, राइट। जो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, अगर हम मास्टर लीफ को एक छोटी थिकनेस के ऊपर हम मास्टर लीफ को अगर बढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस इसकी स्मॉल कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें मिनिमाइज होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट सेकंड पॉइंट इज क्या होगा, वाई गिविंग द ग्रेटर रेडियस, by giving the greater radius of curvature, to the full length, leaf। तो जो फुल लेंथ लीव होगा उसको हमें ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर देना पड़ेगा, मींस उसको ज्यादा एलिप्टिकल शेप के बीच में लाना पड़ेगा, उसको ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका होना चाहिए टू द फुल लेंथ लीव बिफोर असेंबलिंग इट फॉर द स्प्रिंग, राइट। सो दीज टू कंडीशंस शुड बी देयर। तो जब ऐसा होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर
टू द फुल लेंथ लीफ देंगे, सो देन देयर इज ए गैप, सो देन देयर इज ए गैप बिटवीन द लीव्स, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा, लीफ के बीच में गैप हो जाएगा, लीफ के बीच में क्लियरेंस स्पेस हो जाएगा, सो दैट गैप और द क्लियरेंस इज कॉल्ड द निप, राइट। सो दैट गैप यू कैन से, सो देन क्या है, देयर इज clearance, there is clearance or gap between the leaves, right? So that gap is called the nip. वो जो गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, निप बोलेंगे। जहां तक क्लियर है सभी को, क्या था निपिंग, आई हैव रिटन हियर, नाउ आई विल जस्ट अगेन एक्सप्लेन यू। निपिंग इज व्हाट, एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट स्ट्रेस इन द फुल लेंथ लीफ is 50% more than the stress in the graduated leaves, right? This we have already calculated also. But our point is, the stress should be equal in all the leaves, so then we can utilize the material of the leaves, material of the spring leaf spring is utilized quite advantageously, right? Quite properly. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, to get the same stress, to get the same stress in all the leaves, what we have to do, we have two conditions, we have to take the two conditions in order to get the stress in all the leaves equal, in all the leaves equal लिख लीजिए, in all the leaves equal। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि मास्टर लीफ इज हैविंग द स्मॉलर थिकनेस। तो मास्टर लीफ जो होगा या जो फुल लेंथ लीफ होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो क्या करेंगे, उसकी थिकनेस को हम कम कर देंगे। तो उसकी थिकनेस कम करने से क्या होगा, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जो इंड्यूस होगी वो क्या होगी, कम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी। और दूसरा, बाय गिविंग द ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फुल लेंथ लीफ बिफोर असेंबलिंग इट फॉर द स्प्रिंग। तो इसको असेंबल करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो फुल लेंथ लीफ है इसको ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर देंगे। और जब ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फुल लेंथ लीफ का, तो जो इनके बीच में जो क्लियरेंस होगा, जो लीव्स के बीच में जो क्लियरेंस आएगा, इन दिस केस जब वो गैप बनेगा, इन दिस केस दैट गैप इज कॉल्ड ए निप, राइट। सो in order to get in the maximum load conditions, we have to adjust the gap. We have to adjust the gap between the leaves in such a way that the stresses on all the leaves that should be equal. हमें गैप को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशन के ऊपर कितना गैप होना चाहिए, मींस कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसको फुल लेंथ लीफ को देंगे, जिनके बीच में लीव्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, सो दैट the stresses in all the leaves should become equal, or you can say stresses in the master leaf that becomes less than that of the graduated leaf, right? This point is clear, up to this point is clear. Now I will rub it and just see again now further. अच्छा, जहां तक तो क्लियर हो गया, हमने क्या कर लिया, इसको ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर देके लीव्स को हमने असेंबल कर लिया। अब जैसे मैंने आपको अभी कंस्ट्रक्शन में बताया था, दिस इज द सेंट्रल बोल्ट, जहां से सेंट्रल बोल्ट पास होगा, राइट। या यू बोल्ट से इसको हम क्लैंप करेंगे या सेंट्रल बोल्ट से करेंगे, राइट। तो जब सेंट्रल बोल्ट को टाइटन करेंगे, व्हेन द बोल्ट is tightened, ठीक है ना, ये जो बोल्ट जो इसके बीच में सेंटर में से पास होगा, when the bolt is tightened, तो what happens, क्या होगा, जब बोल्ट को हम टाइटन करेंगे क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट क्या होगा, इनिशियल stress
will be developed in the full length leaf, right? As the bolt is tightened, जैसे बोल्ट को टाइटन करेंगे क्या होगा, एक तो इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो कैसे डेवलप होगी, द फुल लेंथ लीफ will bend back, ठीक है। फुल लेंथ लीफ क्या करेगा, ये पहले ऊपर की तरफ ये बेंड करेगा, पीछे की तरफ ये बेंड करेगा, जब इसको हम टाइटन करेंगे लोड को तो ये बेंड करेगा, राइट। और जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, ये जो आपकी इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होगी, जो आपकी इनिशियल स्ट्रेस होगी, इनिशियल स्ट्रेस मैंने लिखा है, ये ऑलरेडी लिखा है, इनिशियल स्ट्रेस विल बी डेवलप। इसका जो इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, इनिशियल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये बैक बेंड करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इज द ऑपोजिट टू द नॉर्मल लोड। ऑपोजिट टू द नॉर्मल लोड, समझ आ गया ये पॉइंट क्या है। जब हम बोल्ट को टाइटन करेंगे, राइट, तो ये जो आपका मास्टर लीफ है, जिसको हम फुल लेंथ लीफ कहते हैं, जब इसको टाइटन करेंगे तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ये ट्राई टू स्ट्रेटन है, ये सीधा होने की कोशिश करेगा। जब सीधा होने की कोशिश करेगा तो जो आपको कर्वेचर दिया है, तो ये बैक बेंड जो है ये पीछे की तरफ बेंड करेगा, राइट। जब ये पीछे की तरफ बेंड करेगा तो क्या होगा, उस वक्त क्या है कि इनिशियल स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी, और जो इनिशियल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होगी, अगर लोड आप इस तरीके से लगा रहे हैं, लोड आपका इस तरीके से लग रहा है, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो लोड के क्या होगी, अपोजिट उसकी डायरेक्शन होगी, फुल लेंथ लीफ, राइट। तो जो आपका ग्रेजुएटेड लीफ है आपके, तो ग्रेजुएटेड लीफ में भी क्या होगा, ग्रेजुएटेड लीफ इसमें भी क्या होगा, इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होगी, इनिशियल स्ट्रेस will be developed, and the direction of initial stress, direction of the initial stress क्या होगी, is same in the direction of load, is same in the direction of load। समझ आ गया ये पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि जब हम, दोबारा समझिए इसके ध्यान से, जब हम बोल्ट को टाइटन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मास्टर लीफ है that will first bend back, जब पीछे की तरफ, क्योंकि इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, and it will try to straighten up when the load will act on that, right? So it will bend back, and during that course of action, what happens? Initial stresses will develop in the full length leaf. That initial stress, you can say, that is having the direction opposite to the normal load, right? उसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल लोड के ऑपोजिट होगी। In the same way, in the graduated leaves also, initial stresses will be developed. What the direction of the initial stress will be same as the direction of load. ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा। अब देखिए, ये आपने क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया,
और ये आपका स्प्रिंग जो है रेडी हो गया लगाने के लिए, इसको बोल्ट को टाइट किया, स्प्रिंग को रेडी हो गया, जो स्प्रिंग का फंक्शन था वो आपका रेडी हो गया। अब आप इसको हम हाउसिंग करेंगे, एक्सेल के हाउसिंग में इसको हम सपोर्ट करते हैं, अटैच करते हैं, और जब ये व्हीकल के साथ लगता है, ऑटोमोबाइल के साथ लगता है, तो क्या होगा, उस पर ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेगा, राइट। सो इस केस में क्या होगा, ये जो पहले मैंने आपको स्ट्रेसेस बताई थी, ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी जब आप इसको असेंबल कर रहे थे, जब आपने क्या किया, बोल्ट को टाइटन किया इसको असेंबल करने के लिए, उस वक्त भी ये स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी, इनिशियल स्ट्रेसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन द लोड इज, व्हेन द ग्रेजुअल लोड is when the gradual load is applied, तो जब ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे होगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्या करेगा ये, इसको समझो पॉइंट को। फर्स्ट जो फुल लेंथ लीफ था इसमें आपका इनिशियल स्ट्रेस डेवलप हुआ था, राइट, और जो इनिशियल स्ट्रेस की डायरेक्शन थी वो अपोजिट टू द नॉर्मल लोड थी। जब इसमें लोड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इट विल रिलीव द इनिशियल स्ट्रेस, राइट। तो पहले क्या करेगा, जो इसमें इनिशियल स्ट्रेस फुल लेंथ लीफ में जो इनिशियल स्ट्रेस आपकी डेवलप हुई थी उसको ये क्या करेगा, पहले रिलीव करेगा, और उसके बाद इस पर जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इट विल लीव द स्ट्रेस फर्स्ट एंड देन स्ट्रेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, then stress in the opposite direction, right? तो इससे क्या होगा, ये देखा आपने, जो लोड आप अप्लाई करते हैं, पहला लोड तो काफी पार्ट ऑफ द लोड जो है इनिशियल स्ट्रेस को रिलीव करने में ही जो है कंज्यूम हो जाएगा, राइट। जो लोड से स्ट्रेसेस फॉर्म होंगी तो इनिशियल स्ट्रेस जो उसमें डेवलप होगी उसमें कंज्यूम होगा, और फिर ये स्ट्रेस करेगा आपकी फुल लेंथ लीफ है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फुल लेंथ लीफ था, फुल लेंथ लीफ, राइट, consequently stressed less than the graduated leaf, ठीक है। तो जो फुल लेंथ लीफ है इसका स्ट्रेस जो थी वो ग्रेजुएटेड लीफ से कम होगी। कहने का मतलब है कि फुल लेंथ लीफ के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, उससे कम स्ट्रेस पड़ेगा ग्रेजुएटेड लीफ के साथ, राइट। और यही चीज तो हमें चाहिए थी, दिस ओनली वी वांट, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग में अगर दोबारा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो फुल लेंथ लीफ है इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं ये ग्रेजुएटेड लीफ से 50% ज्यादा है, पॉइंट समझे आप। तो इसलिए ये लीफ जो है ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, मोर देन 50% स्ट्रेसेस इस पे ज्यादा होंगी, तो दिस लीफ विल स्ट्रेस मोर, राइट। बट अवर मेन फंक्शन इज टू यूटिलाइज ऑल द मटेरियल्स ऑफ द स्प्रिंग, so in order to get these condition or to make the stress equal in all the leaves, what we have to do, we have done two conditions there, we have assumed two conditions, or we use practically we have done two conditions. First what we will do, पहले हमने क्या किया उस कंडीशन में, फर्स्ट क्या था कि जो आपका फुल लेंथ लीफ है उसको
जो लीफ होगा उसका, उसको स्मॉलर थिकनेस, उसकी थिकनेस आप कम कर दीजिए, स्मॉल कर दीजिए, ताकि जो बेंडिंग स्ट्रेस उस पर इंड्यूस हो वो कम हो। पहला पॉइंट ये किया। दूसरा मैंने उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने उसको दिया, जो फुल लेंथ लीफ था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने उसको ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, राइट। सो ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर देने से क्या हुआ कि जब हम उसको असेंबल करने लगे, व्हेन वी हैव असेंबल्ड एंड टू फॉर्म एज ए स्प्रिंग, मैंने बोल्ट को बीच में से पास किया, असेंबल किया, और बोल्ट जो सेंटर बोल्ट था उसके द्वारा जब उसको मैंने टाइटन किया स्प्रिंग बनाने के लिए, टू फॉर्म द स्प्रिंग, व्हाट हैपेंस, जब बोल्ट को टाइटन किया तो क्या होगा, बोल्ट के थ्रू उस पर लोड एक्ट किया, फोर्स लगाई, राइट। तो जब उसको टाइटन किया तो क्या हो गया, इनिशियल स्ट्रेस जो है वो डेवलप हुई, इसमें फुल लेंथ लीफ में भी और ग्रेजुएटेड लीफ में भी, ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन वी आर टाइटनिंग द बोल्ट। अब जो फुल लेंथ लीफ था, वी हैव गिवन द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू दिस, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि जो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, जब हमने उसको टाइटन किया तो वो क्या हुआ, जो लीफ था जैसे हमने टाइट किया पहले वो बेंड बैक हुआ, तो पीछे की तरफ बैक बेंड हुआ, राइट। और जो इनिशियल स्ट्रेसेस थी उसके बीच में सेटअप हो गई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल लोड, राइट। और ग्रेजुएट लीफ इज हैविंग द इनिशियल स्ट्रेसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल लोड, राइट। तो ऐसा करने के बाद क्या हो गया, जब ये हो गया, आपने स्प्रिंग को एक फॉर्मेशन देगी, स्प्रिंग आपने बना दिया बोल्ट के साथ टाइट करके, लीव्स को प्रॉपर तरीके से हेल्ड टुगेदर करके बोल्ट के साथ टाइट करके ये किया, और उसके दौरान जो है ये जो इनिशियल स्ट्रेसेस थी जब आपने बोल्ट को टाइट किया तो दैट विल बी सेट अप बिफोर फिक्सिंग द स्प्रिंग टू द ऑटोमोबाइल। अब जब मैंने ऑटोमोबाइल के साथ स्प्रिंग को लगाया, राइट, सो यू नो दैट ऑटोमोबाइल इज हैविंग द बेंडिंग, वर्टिकल बेंडिंग लोड आल्सो, swing load, swing of the car load, also swing of the vehicle, twisting. So there are so many loads which are acting on the spring. So I said when the gradual load is applied, तो उसने क्या किया, जब मैंने ग्रेजुअल लोड उस पर अप्लाई किया तो उसमें एक ऑलरेडी जब अपना बोल्ट को टाइट किया था तो इनिशियल जो थी स्ट्रेस डेवलप हुई थी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो पहले उस लोड ने उसको ओवरकम किया, जो इनिशियल स्ट्रेस थी अपोजिट डायरेक्शन में उसको ओवरकम किया, और उसके बाद उसके बीच में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस की इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लोड, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था। ऐसा करने से क्या हो गया, व्हाट हैपेंस, जो फुल लेंथ लीफ था ये कम स्ट्रेस हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेस आपने लोड लगाया था जिससे वो स्ट्रेस की फॉर्मेशन हुई, वो स्ट्रेस जो है काफी पार्ट ऑफ द सक्सेस स्ट्रेस जो था वो कंज्यूम हो गया इस चीज में कि उस इनिशियल स्ट्रेस को रिलीव करने में, और जो फर्दर स्ट्रेस जो बची वो आपके फुल लेंथ लीफ के ऊपर एक्ट किया। तो जो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रेस था फुल लेंथ लीफ के ऊपर ये ग्रेजुएटेड लीफ से कम हो गया। दिस वी वांट आइदर द स्ट्रेस ऑन द फुल लेंथ लीफ दैट शुड बी लेस और it should be equal, right? तो इसमें जहां से क्या कंक्लूजन निकला मुझे बताइए, जहां से क्या कंक्लूजन निकला आपका, जहां से कंक्लूजन निकला कि अंडर, कंक्लूजन क्या निकला इसमें, ये जो मैंने आपको इतना सब कुछ बताया इसमें क्या कंक्लूजन निकला, under maximum load condition under maximum load condition the gap or clearance, जहां जिसको हम भी कहते हैं, बिटवीन द लीव्स will be adjusted in such
इन सच वे, ठीक है, ये जो गैप था, जो क्लियरेंस था इसके लीव्स के बीच में, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देने से, कहने का मतलब है कि हमें ये डिसाइड करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेन लीफ को वो कितना दिया जाए। ये जो चीज लिखी है इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बैलेंस द स्ट्रेसेस, कि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया जाए। जितना के रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्लियरेंस होगा, गैप होगा, या निप जो होगा। तो अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशन के गैप, क्लियरेंस या निप कितना होना चाहिए, सो दैट stresses should be equal in all values। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझिए कि निपिंग किस लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द निपिंग इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि निपिंग ही इसका मेन पैरामीटर है डिजाइन ऑफ द लीफ स्प्रिंग का। निपिंग से ही हमें ये पता चलेगा कि डिपिंग से ही वी विल कम टू नो कि कितना गैप जो है इनके बीच में, लीव्स के बीच में कितना गैप हो, कितना क्लियरेंस हो, कितना निप होना चाहिए, और यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका था फुल लेंथ लीफ का, तो ये कितना हो, सो दैट कि अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशंस के ऊपर द स्ट्रेसेस शुड बी इक्वल इन ऑल द लीव्स, or you can say, or full length leaf is having the less stress। अगर फुल लेंथ लीफ के ऊपर इससे कम स्ट्रेस होती है तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये किस लिए है, इन ऑटोमोबाइल्स यू नो दैट वी आर यूजिंग द लीफ स्प्रिंग, और जो आपका मेन लीफ होगा, मास्टर लीफ होगा, वहां पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां पे क्या होगा, द स्ट्रेसेस विल एक्ट ऑन दैट ड्यू टू द वर्टिकल बेंडिंग लोड, ड्यू टू द स्विंग ऑफ द कार, ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ द व्हीकल। तो इनके कारण क्या होगा कि वहां पे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगी, और ड्यू टू ये जो जितनी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर लीफ, मास्टर लीफ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी यूज द 2 मास्टर लीव्स, तो हम 2 मास्टर लीव्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम निप को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करें, और इस तरीके से एडजस्ट करें कि अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशन, जितना मैक्सिमम लोड उसके ऊपर डाल सकते हैं, अंडर दैट कंडीशन we should adjust the nip, we should find out the value of the nip, how much the value, how much the nipping should be there, so that the stresses should be equal or less than all the leaves, right? So this is about your nipping. What is nipping, how it happens, what is the importance of the nipping, how it works in the leaf spring. So this is I have given you all the detail. Now I will just do the calculation and find the formula derivation of the nipping, right? Okay. Now, to calculate the value of C. So C, what is C? C you can say nip. हमने अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। देखिए, तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशंस हम क्या चाहते हैं, अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशंस द स्ट्रेसेस ऑन ऑल द लीव्स शुड बी इक्वल। पहला कंडीशन ये था, तो क्या था, अंडर
maximum load, under maximum load condition, फर्स्ट पॉइंट था stresses on all the leaves, stresses on all the leaves are equal, right? सेकंड क्या था? अंडर मैक्सिमम लोड कंडीशन सेकंड क्या था? जो फुल लेंथ लीफ था, फुल लेंथ लीफ the total deflection, of the graduated leaves should be exceed to the full length leaf by an amount C. Stresses on all of the leaves are equal. First point, the total deflection of the graduated leaves should be C to the full length leaves by an amount C. क्योंकि जो फुल लेंथ लीफ जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, पर जो दोनों के बीच में गैप था, उस गैप का जो वैल्यू था मैंने कहा वो वैल्यू कितना C, और उसके बाद जो दोनों का स्ट्रेसेस हुआ वो इक्वल हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेजुएट लीफ जो था इसका स्ट्रेसेस जो है इतना अगर हुआ तो इसने ये जो क्लियरेंस था उसको कवर किया। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेजुएटेड लीव्स शुड बी एक्सीड, ये ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? जितनी फुल लेंथ लीफ की डिफ्लेक्शन हुई थी उससे C अमाउंट ज्यादा होगी। C क्या है? गैप, क्लियरेंस, निप, उतने अमाउंट इसकी ज्यादा होगी। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें? तो क्या इक्वेशन आएगी? डिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेजुएटेड लीफ, तो मींस डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा F प्लस C। इसका मतलब यही हुआ, द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेजुएटेड लीफ दैट इज दिस डेल्टा G should be exceeded to the full length leaf by an amount C। तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है फुल लेंथ लीफ से कितनी ज्यादा होगी? बाय एन अमाउंट C। सो इट मींस डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा F प्लस C। इज देयर एनी प्रॉब्लम? देयरफॉर निप क्या आएगा इसमें? निप इज इक्वल टू डेल्टा G माइनस डेल्टा F। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो डेल्टा G क्या था? अगर आप कल का लेक्चर मेरा ध्यान से देखें और पढ़ा होगा तो उस केस में डेल्टा G जो था आपका ये क्या था? 6WG LQ and GEVTQ। आई थिंक दिस इज द फार्मूला, चेक इट। यही फार्मूला था जो हमने डिफ्लेक्शन निकाली थी आपकी ग्रेजुएटेड लीव्स में, जो डिफ्लेक्शन थी यही फार्मूला था, 6WGLQ and GEVTQ, राइट। और डेल्टा F क्या होगा? फुल लेंथ लीफ का क्या था? दिस इज 4
4WF LQ NF EBDQ, यही राइट। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 6WGLQ NGEBDQ minus 4WFLQ NFEBDQ, right? Now next C. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन दी क्या थी? स्ट्रेसेस आर इक्वल, ठीक है, मतलब स्ट्रेस इन सिग्मा एफ दिस इज इक्वल टू सिग्मा जी, यही बताया ना, स्ट्रेसेस इसमें इक्वल है। जो स्ट्रेस फुल लेंथ रिलीफ में होगी वही ग्रेजुएट रिलीफ में होगी। तो फुल लेंथ रिलीफ में स्ट्रेस क्या थी आपकी? 6WF L NF BD square, right? This is equal to 6WGL NG BD square, right? तो 6 और 6 कैंसिल, L और L कैंसिल, BD square कैंसिल, right? So you have therefore WF upon WG, WF upon WG, this is equal to NF upon NG, right? Therefore, WF is equal to WF is equal to NF upon NG into WG। R इसको आप ऐसे लिख लो, R WF this is equal to NF upon N into WG, right? तो इसी तरीके से आपका WG आएगा, therefore WG क्या आएगा? ND into WF upon N। सो ये दो वैल्यू आपकी WF और WG की दोनों वैल्यू आपकी आ गई, राइट? अब क्या करेंगे? इसको WG की वैल्यू निकाली, WF की निकाली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। Therefore C is equal to 6 into WG है ना, W की क्या वैल्यू आएगी? WF into NG upon N into LQ, ये आ गया NG NEBDQ, right? So minus
डब्ल्यू एफ की वैल्यू है एन एफ अपॉन एन इंटू डब्ल्यू जी, तो इसको मिटा देता हूं, एन एफ अपॉन एन इंटू डब्ल्यू जी। सो दिस इज एन एफ अपॉन एन इंटू डब्ल्यू जी इंटू एल क्यूब इंटू एन एफ ई बी टी क्यू, ई बी टी क्यू। अब ये कैंसिल कर लो, जो होता है ये कैंसिल कर लो, इसको एन एफ और एन एफ कैंसिल कर दो, ठीक है। तो जहां पर भी कैंसिल हो जाएगा आपका एन जी और एन जी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, जहां से क्या कॉमन आएगा, टू एल क्यूब, ऊपर क्या आएगा, टू एल क्यूब तो ये आपका जो डब्ल्यू एफ है और डब्ल्यू जी है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज द स्ट्रेसेस आर इक्वल, सो द लोड शेयर्ड बाय दिस, सो द लोड शेयर्ड बाय दिस इज आल्सो इक्वल। let I say that load shared by this is W, तो मैं इसकी जगह, बिकॉज मैं कर सकता हूं WF this is equal to WG, this is equal to W, is there any problem? कुछ नहीं है, तो मैं W भी कॉमन ले लूंगा क्योंकि ये W है दोनों, क्या आएगा 3, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, एन ई बी टी क्यू, राइट। सो एन ई बी टी क्यू, राइट। सो यू कैन से इसको रहने दीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3, दिस इज डब्ल्यू एफ माइनस 2 डब्ल्यू जी राइट। तो मैंने आपको बताया डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू जी की जगह अगर मैं इसको डब्ल्यू लिख लूं तो कोई फर्क पड़ा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2 एल क्यूब एन ई बी टी क्यूब, दिस इज 3 डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 2 W L cube upon N E B T cube. So this is the equation of the nipping, very important one. Numerical में पूछ सकते हैं, find the value of nipping. So C is equal to 2 W L cube N E B T cube. समझ आ गई ये? This is clear. आप लिख लीजिए, राइट आउट एंड देन आई विल रब इट। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं।
अब इसमें ये भी निकाल लेंगे हम, लोड रिक्वायर्ड बाय द बोल्ट टू क्लोज द गैप, है ना। कितना लोड चाहिए बोल्ट के ऊपर हमें कि ये जो गैप प्रोड्यूस हुआ है इसको क्लोज करे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सो मैं कहता हूं कि ये WV इज द लोड वी आर अप्लाइंग ऑन द WV is the load we are applying on the bolt, right, to assemble the spring. We are tightening it, we are applying the load. So what happens, जब WB इधर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइड के ऊपर जो इसका ऑपोजिट एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो ऑपोजिट लोड होगा, दिस इज WB/2 एंड दिस इज WB/2, right? So its direction is opposite. As the load is applying in the downward direction, so its direction is the positive one, right? So you can say let WB is the load applied. Load applied by the bolt to close the gap, right? तो गैप जो इसमें क्या होगा, जो गैप होगा आपका गैप कि किस फैक्ट के ऊपर, गैप इज इक्वल टू व्हाट, जो गैप होगा तो क्या होगा, इनिशियल डिफ्लेक्शन इन द full length leaf plus initial deflection in the graduated, right? So gap क्या होगा, कितनी इनिशियल डिफ्लेक्शन होगी फुल लेंथ लीफ की, राइट? जब हम लोड को टाइटन करेंगे तो ये जो बेंड बैक करेगा आपका मेन लीफ, तो कितनी डिफ्लेक्शन होगी फुल लेंथ लीफ की और कितनी इनिशियल डिफ्लेक्शन होगी आपकी ग्रेजुएटेड लीफ की ड्यूरिंग दैट कोर्स व्हेन वी आर टाइटनिंग द बोल्ट, राइट? सो यू कैन से गैप को क्या कैसे डोनेट करता है, सी, तो इनिशियल डिफ्लेक्शन द फुल लेंथ लीफ आप लिख सकते हैं डेल्टा एफ, so graduate leaf, this is delta G. This is clear. तो हमें क्या निकालना है, लोड रिक्वायर्ड बाय द बोल्ट टू क्लोज द गैप, कि हमें कितना लोड चाहिए कि ये गैप को क्लोज करे, राइट? तो C, therefore C is equal to डेल्टा, आपको पता है क्या है आपका डेल्टा, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू WF into L cube NF into E into V T cube, यही है, सॉरी नॉट डेल्टा, दिस इज 4 WF, फुल लेंथ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो 4 WF L cube NF E V T cube प्लस 6 WG
एल क्यू एन जी इंटू ई इंटू बी इंटू टी क्यू। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने लिख लिया। अब ये डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू जी जो है, दिस इज द लोड शेयर्ड बाय द फुल लेंथ लीफ एंड दिस इज द लोड शेयर्ड बाय द ग्रेजुएटेड लीफ। लेकिन मैंने आपको बताया जब अब डब्ल्यू बी मैंने अज्यूम किया कि वी आर अप्लाइंग द लोड, तो जो लोड है चाहे फुल लेंथ लीफ है चाहे ग्रेजुएटेड लीफ है, द लोड इज डब्ल्यू बी बाई टू। ठीक है, लोड क्या है इसमें, डब्ल्यू बी बाई टू इज द लोड फॉर द फुल लेंथ लीफ एंड द लोड इज ग्रेजुएटेड लीफ। ठीक है, तो जो डब्ल्यू बी बाई टू इज द लोड, राइट। सो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आर अगर मैं ऐसे लिखूं 4 इंटू डब्ल्यू बी बाई टू इंटू एल क्यू एन एफ ई बी टी क्यू, राइट, प्लस 6 डब्ल्यू बी बाई टू इंटू एल क्यू एन जी इंटू ई बी टी क्यू, राइट। इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं, इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं कॉमन लेता हूं ऊपर से कॉमन आएगा 2l क्यूब, 2l क्यूब, नीचे से आपका आएगा ई बी टी क्यूब, राइट। नीचे से कॉमन आपका आएगा ई बी टी क्यूब, नीचे से आ गया आपका ई बी टी क्यूब, तो ये क्या आया 2 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 2 प्लस 3 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 2 2 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 2, तो ये आपका आ गया एन एफ, राइट। ये आपका आ गया एन जी। कोई प्रॉब्लम, 2 और 2 ये कैंसिल कर दी मैंने, राइट। अच्छा, अब आप देखिए एक चीज, देखिए हमने C की वैल्यू निकाली थी, अभी निट की वैल्यू निकाली थी। आई थिंक C की वैल्यू हमने निकाली थी, C क्या था इसका, C इज इक्वल टू 2WL³ एन ई वी टी क्यू, आई थिंक लाइक दिस, चेक इट, यही था। C की वैल्यू क्या थी, राइट। सो दिस C की वैल्यू हमने निकाली थी, राइट। तो ये जो सब कुछ निकाला है ये क्या है आपका C है ना, ये C चल रहा है, तो मैं जो C की जगह है ये लिख सकता हूं 2WL³ NEVT³, राइट। सो आई कैन राइट इट, C की जगह दिस इज C, ये सारा C आपका चल रहा है, सो मैं इधर भी लिख सकता हूं, दूंगा आपका C। तो C था आपका 2WL³ NEVT³, right? This is equal to 2L³ upon EVT³, ब्रैकेट में क्या आएगा
WB upon NF plus 3WB upon 2NG, right? यस, तो ये आपका, अगर मैं एलसीएम ले लूं NF 2NG, तो क्या आएगा? NF ये आएगा आपका WB इंटू 2NG प्लस प्लस 3NF इंटू WB। ठीक है, यही आना चाहिए। यस यस, राइट। देखिए, जे आपका कैंसिल हो गया, जे कैंसिल, जे कैंसिल, जे कैंसिल, ये ई बी टी क्यू के कैंसिल हो गया। देयरफॉर W अपॉन N, राइट। सो W अपॉन N ये किसके बराबर आया? WB कॉमन 2NG प्लस 3NF अपॉन NF इंटू 2NG, राइट। तो therefore WB कितना आ गया? therefore WB कितना आया? W इंटू NF इंटू 2NG डिवाइडेड बाई N upon 2NG plus 3NF. So this is the value of WB. This is the value of WB. This is the value of WB. Yes. So this is the value of the WB. This is very important one. This is the load applied by the central bolt to reduce the gap between the leaves. J जो फार्मूला है WB, this is equal to W into N into F. NF क्या होगा? Number of number of full length leaves into 2NG. NG is the number of graduated leaves into N. N क्या हो गया? Total number of leaves. That is total number of leaves क्या होंगे इसमें? N is equal to क्या होगा? NF plus NG. This is your N, right? N क्या होगा आपका? NF plus NG into 2NG plus 3NF. This is the very important formula to calculate the load applied by the bolt to reduce the gap between the leaves, right? So this is a formula, I think you must note only. Yeah, note कर लो पहले, फिर इसको रब करता हूं। Now you have written down. Now next one is next
Next one is final stress. Next one is your this final stress in the spring leaf. Final stress in the spring leaf. Final stress in the spring leaf. Not leaf, but spring leaves. Final stress in the spring leaves. अब देखिए कि फाइनल स्ट्रेस किसके बराबर होगी? स्ट्रेस induced in the full length leaf due to applied load minus initial stress. जो समझ आया पॉइंट? जब हम लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, व्हेन वी अप्लाई द लोड, तो उस वक्त जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी फुल लेंथ लीफ में, तो जो इनिशियल स्ट्रेस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो पहले उसको रिलीव करेंगे, तो जो टोटल स्ट्रेस, जो फाइनल स्ट्रेस आपकी स्प्रिंग के लीफ में होगी, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द फुल लेंथ लीफ due to applied load minus initial stress, right? Due to applied load minus initial stress. So this is equal to, क्या होगा आपका स्ट्रेस, क्या होगी इसमें 6 WF into L, है ना, NF VT स्क्वायर, और जो इनिशियल स्ट्रेस होगी वो क्या होगी -6 into L into WB/2. इनिशियल स्ट्रेस क्या होगी, उसमें लोड क्या लगेगा WB/2. दिस इज NF VT स्क्वायर, राइट. तो ये सारा कॉमन आ जाएगा आपका, or you can say 6L NF VT square. This is equal to WF minus WB/2. Right. अब WF की क्या वैल्यू थी? Just check it and tell me what is the value of WF. So WF is equal to, or you can say 6L NF/VT square. WF 3NF divided by 2NG plus 3NF into W माइनस WV की अभी वैल्यू निकाली हमने, क्या थी इसकी वैल्यू बताइए मुझे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WV? So WV is equal to 2NF NGW, 2NF NG, WB इधर लिख लेते हैं, WB
is 2NF and G W divided by what is the value? N into 2NG plus 3NF. N into 2NG plus 3NF. यही वैल्यू अभी कैलकुलेट किए मैंने, because I am not written here. So this I have to see. तो इसकी जगह ये वैल्यू W/2 की ये वैल्यू पुट करेंगे हम जहां पे, दिस इज 2NF into NG into W divided by N 2NG plus 3NF, right? दिस इज W/2 था ना, तो मैंने 1/2 इधर लिख लिया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्या है, सो W भी बाहर निकाल लो आप, तो देयरफॉर 6WL and F BT square. This is equal to 3NF upon 2NG plus 3NF minus NF into NG, NF into NG divided by N into 2NG plus 3NF. Right? तो अब आगे क्या होगा इसमें, अब देखिए इसको, मैं इधर से इसको ये आपका कॉमन आएगा N 2NG plus 3NF, ये आपका एलसीएम आएगा। सो ये क्या रकम आएगी, N into 3NF minus NF into NG, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, therefore 6WL NF PT square, so NF I will take common from here, so NF N into 3 minus NG divided by N into 2NG plus 3NF, ठीक है। Therefore 6WL
वी टी स्क्वायर। तो n क्या था, n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था n इज